You are watching Review School YouTube channel, and today we are going to learn 7th standard geography chapter number 2, phases of moon. Let's learn the phases of moon. Moon. The moon is a natural satellite of the Now in this video you have got to know the moon is a natural satellite of the earth. Now what do you mean with the natural satellite? Natural means the thing which has not been made by the man. That's why it is known as a natural. And satellite are things which revolves around a celestial body in the space. That's why moon is a natural satellite of the earth. earth. Remember that the moon revolves around the earth. The next important point is that the moon revolves around the earth as well as rotate on its own axis. And the most important thing about the revolution of the moon around the earth as well as rotation of the moon on its axis is that the period it takes is same. Revolution of the earth and rotation on the axis, the time period of the moon is same. And also rotates on its axis. Have you ever observed that the moon changes its shape? And when the moon revolves around the earth, at that time we see changes in the shape of the moon on every day. Every day we will see some differences in the shape of the moon. And let's now, today we will learn how those changes happen. There are days when the moon appears to be perfectly round. जब हम आसमान में, when we see in the sky, at that time we see the whole disk of the moon in the sky, and that is known as a full moon day. There are days when the moon cannot be seen at all, even if the sky is. And during that period of the revolution of the earth, there is also a day when in the sky we cannot see the moon from the earth. From the earth. The moon is in the sky, but from the earth we cannot see the moon. Clear. Let's understand about the different phases of moon. The day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon. अभी मैंने बताया था ना, जब स्काई में हमें मून का पूरा शेप दिखाई देता है, फुल शेप, तो वो डे को फुल मून डे कहते हैं. ये फेजेस ऑफ मून का पहला पार्ट है. स्काई में फुल मून दिखाई देगा तो उसे हम फुल मून डे कहते हैं. Thereafter, every night, the size of the bright. और उस फुल मून डे के बाद, आफ्टर दैट, हर दिन शेप ऑफ द, जो साइज ऑफ द मून है, दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग. पहले फुल मून था, पूरा था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ. उसका शेप कम दिखाई दे रहा है हमको. अर्थ से हमें वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है. और एक दिन ऐसा आएगा कि हमको स्काई में जीरो मून दिखाई देगा. नो मून कहेंगे उसको, न्यू A मून. part of the moon appears to become thinner and thinner. On the 15th day, the moon is not visible. देखो, This day is known as डे 15 डे को अभी देखो, इसके पहले हमने देखा था फुल मून दिखाई दिया,
शेप कम होते गया और एक ऐसा टाइम आया फिर हमको स्काई में मून दिखाई ही नहीं दे रहा है. दैट पीरियड इज नोन एज न्यू मून डे. The new moon day. The next day, only a small portion. अभी ध्यान से देखो, न्यू मून डे हो गया जहां पे हमको स्काई में मून बिल्कुल नहीं दिखाई दिया. उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे हमको थोड़ा सा पार्ट ऑफ द मून दिखाई दिया. दिखाई दे रहा है, या 3 दिन के बाद इतना ज्यादा शेप में आएगा और इसे हम लोग क्रेसेंट मून कहते हैं. कौन सा मून कहते हैं, क्रेसेंट मून. लेकिन इसका एक्चुअल नाम वैक्सिंग क्रेसेंट मून है. क्यों वैक्सिंग, वैक्सिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग. जब 0 से शेप बढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो वैक्सिंग होगा, और जब फुल से, जब पूरा मून रहेगा और उससे उसका साइज घटना स्टार्ट होगा उसको वेनिंग कहेंगे. वेनिंग मून कहते हैं. Now the moon appears in the sky. This is known as the crescent moon. क्रेसेंट मून. Then again, the moon grows larger every day. Size of the moon is increasing every day. Day by day size of the moon is increasing. और फिर वापस 13 से 14 से 15 डेज के बाद हमें फिर फुल मून दिखाई देगा. और ये जो पूरा पीरियड होगा इसमें साइज ऑफ द मून जो है बढ़ती जाती है और उसे हम लोग वैक्सिंग मून कहेंगे. On the 15th day, once again we get a full view of the moon. पूरा मून आ गया वापस से हमको. The various shapes of the bright part of the moon. इसी को हम लोग, ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं. इसमें होता कैसे है, हम फुल मून से स्टार्ट करते हैं. फुल मून है ये. फुल मून के बाद देखिए यहाँ पे शेप कम हो गया है, 3/4 हो गया है, 1/4 पार्ट उसका कम हो गया है. तो इसको कहेंगे वेनिंग गिब्बस मून. ये गिब्बस है. फिर ये हाफ मून हो गया, आधा पार्ट हो गया, इसको कहेंगे 3rd क्वार्टर. और ये देखिए 1/4 दिखाई दे रहा है, 1/4, इसको कहेंगे क्रेसेंट मून. लेकिन कौन सा वाला क्रेसेंट मून, वेनिंग, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. तो यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, वेनिंग क्रेसेंट हो गया. अब हमारा नो मून हो गया. नो मून होने के बाद वापस से देखिए स्टार्ट हो गया बढ़ना, ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये वैक्सिंग क्रेसेंट हो गया. बढ़ना स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वैक्सिंग क्रेसेंट हो गया. वैक्सिंग क्रेसेंट के बाद देखो फिर वापस से हमको हाफ मून दिखाई दिया, इसको कहेंगे 1st क्वार्टर मून. और 1st क्वार्टर के बाद हमको 3/4, मतलब लगभग अगर हमने मून को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका 3 पार्ट हमको दिखाई दे रहा है. इसको कहेंगे गिब्बस मून. ये भी गिब्बस है, ये भी गिब्बस मून है. लेकिन ये जो गिब्बस है ये वेनिंग वाला है, घट रहा है. ये जो गिब्बस है ये बढ़ रहा है, तो ये भी गिब्बस मून ही है, लेकिन ये वैक्सिंग गिब्बस मून है. और फिर हमें फुल मून दिखाई दिया. इसी को हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून. The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 28 to days. 29 days. In many calendars, this period is called a month. You have learned that moon has not its own light, and for light moon depends on the sunlight. जब सन की लाइट मून के ऊपर पड़ती है और जिस पार्ट पे सन की लाइट पड़ रही है अगर वो पार्ट अर्थ के सामने है, ध्यान से सुनना, सन की लाइट मून पर पड़ रही है और मून के जिस पार्ट पे वो सन की लाइट पड़ रही है अगर वो पार्ट अर्थ के सामने है, देन वी कैन सी द मून. अदरवाइज वी कांट सी द मून फ्रॉम द अर्थ. We therefore see only that part of the moon from which the light of मैंने यही बात बोली ना, we therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. जो पार्ट हमको लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, the sun is reflected towards us. Let's discuss. Positions of the moon. It completes one rotation on its axis. As it completes one revolution around the अर्थ का earth, रोटेशन, मून का रोटेशन साथ में हो रहा है और सन के चारों ओर हो रहा है. the size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day.
Now, this diagram is very important. In this diagram, we have sun, moon and the earth in a single line. This is the picture of the moon which is visible to us from the earth. ये डायग्राम अभी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? हम ये डायग्राम देखते हैं अभी। सन की लाइट मून के ऊपर पड़ी, लेकिन मून के उस पार्ट पे पड़ रही है, देखिए ये व्हाइट कलर उस पार्ट पे पड़ रही है जो अर्थ के साइड नहीं है। जो अर्थ के साइड का मून है वो देखिए डार्क में है, यहाँ पे लाइट आ ही नहीं रही है। तो अर्थ से क्या दिखाई देगा? मून का डार्कर साइड दिखाई देगा, ये वाला, और इसी को हम कहते हैं न्यू मून डे। जब हमें अर्थ से मून का पार्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, उसी को हम न्यू मून डे कहते हैं। ये वाला ऐसा होता है न्यू मून डे, मतलब बिल्कुल भी स्काई में दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों हुआ? फिर से ध्यान से सुनते हैं। सन की लाइट मून के ऊपर पड़ी, लेकिन मून के उस पार्ट पे पड़ी जो सन के साइड है, और अर्थ के साइड वाले पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ रही है। तो अर्थ वाला पार्ट जो है वो डार्क है, और अर्थ से जो हमको दिखाई दे रहा है वो डार्कर साइड दिखाई दे रहा है। तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी और अंधेरा वाला मून हमको दिखाई देगा, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देगा। After the full moon day, the sunlit part of the moon visible from when the moon is on the side of the earth nearest to which is towards earth is dark. This is called the crescent moon. Now, after 3 days, ये पार्ट के डायग्राम के 3 डेज के बाद, यहाँ पर जब 45 डिग्री पे मून आ गया है, मून एक डे में 15 डिग्री के आसपास रोटेट होता है, लगभग 3 डेज के बाद ये वाले शेप का मून हमको दिखाई देता है अर्थ से ये शेप का मून दिखाई देगा। तो इसको कहेंगे वैक्सिंग क्रेसेंट मून। साइज बढ़ना शुरू हो गया ना, 0 था, 0 से ये साइज का मून हमको दिखाई देने लगा, ये साइज तरह से, तो उसको कहेंगे वैक्सिंग क्रेसेंट मून। This phase is called Waxing waxing means or increasing phase increasing. of moon. Phase 3, first quarter moon. As the moon moves further the part of it, Now 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ये एंगल पे हमें हाफ ऑफ द मून दिखाई दे रहा है। अभी 1/4 दिखाई दिया, अभी हाफ मून दिखाई दिया। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून। ये 90 डिग्री पे देखो, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वार्टर मून। फर्स्ट क्वार्टर मून। visible from earth becomes bigger and bigger. This phase is called first quarter moon. Phase 4, waxing gibbous moon. This is phase 4. अभी देखते हैं 90 के बाद 135 डिग्री पे, यहाँ से ये 135 डिग्री पे भी देखिए सन मून का शेप बढ़ गया, 3/4 हो गया। तो इसको कहेंगे वैक्सिंग गिबस मून। साइज बढ़ रहा है ना, तो वैक्सिंग गिबस मून, Which is called waxing gibbous moon. Phase 5, full moon. After 15 days from new moon day, the moon. ना अभी देखिए हमको फुल मून आ गया, लेकिन कब? सन, अर्थ और मून। सन की लाइट डायरेक्ट फॉल कर रही है मून के ऊपर, तो मून का वो पार्ट जो लिट है बिकॉज ऑफ सनलाइट, वो हमें अर्थ से दिख रहा है, इसलिए हमको पूरा मून दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अर्थ के जस्ट पीछे ही छुप गया है, तो लाइट कैसे पड़ रही है? तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ अगर इस ऑर्बिट पे घूम रही है, तो जो मून का ऑर्बिट है वो थोड़ा ऐसा टिल्ट है, झुका हुआ है,
5 डिग्री टिल्ट है, ऐसा 5 डिग्री टिल्ट है। मैं आपको आगे लूनर एक्लिप्स में वो वीडियो दिखाऊंगा। वो जब टिल्ट है तो मून का वो पार्ट या तो उठा रहेगा या तो अर्थ के नीचे झुका रहेगा 5 डिग्री, तो लाइट सन की आसानी से पास हो जाती है और हमें मून का पूरा पार्ट दिखाई देता है। द नेक्स्ट फेज ऑफ द मून दैट इज वेनिंग गिब्बस मून। इन दिस वी कैन सी ओनली 3/4 ऑफ द मून। देखिए 1/4 पार्ट जो है वो कम हो गया, जैसा यहाँ का सिचुएशन था वही सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन ये फेज ऑफ मून का नाम अलग रहेगा। ये नाम है वेनिंग गिब्बस मून। वेनिंग क्यों कहा? वेनिंग मीन्स डिक्रीजिंग। फुल मून था, फुल मून से इसका पार्ट कुछ कम हो गया, देखिए जो डार्कर पार्ट है ये पार्ट कम हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेनिंग गिब्बस मून। और यहाँ से अब शेप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और न्यू मून पे आके स्टॉप हो जाएगा। The sunlit portion of moon facing the earth becomes smaller and smaller. This is called waning phase or decreasing phase of the moon. Phase 7, last quarter moon. देखिए लास्ट क्वार्टर मून में क्या हुआ? हाफ ऑफ द मून अगेन, हाफ मून ही हमको दिखाई दे रहा है अर्थ से, इसको हम कहेंगे लास्ट क्वार्टर। Phase 8, waning crescent moon. वेनिंग This क्रेसेंट is मून final में phase. अगेन This is the थोड़ा last सा ही phase दिखाई दे before रहा है next मून, new moon. और इसके बाद न्यू मून पे हम लोग एंड हो जाएंगे। And ultimately the moon completes the revolution around the earth. और इस तरह से And again हमने reaches to its phase न्यू 1. मून That से is new फुल moon. मून और फिर फुल मून से न्यू मून तक का And that प्रोसेस is why the learn moon किया। changes shapes. And that changes is known as phases of the moon. You must remember that. I am taken from one full moon to next full moon. We have one new moon and one full moon in a month. न्यू मून से स्टार्ट होता है, फुल मून तक जाता है, फिर फुल मून से वापस न्यू मून तक, वो 1 मंथ का पीरियड होता है। द टाइम टेकन फ्रॉम वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून इज कॉल्ड मून बेस्ड और लूनर बेस्ड कैलेंडर। एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक वापस आने में जो पीरियड लगता है उसको लूनर बेस्ड कैलेंडर बोलते हैं, एंड दिस पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड एज ए मंथ। तो हमें ने आज इस तरह से फेजेस ऑफ द मून लर्न किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।